پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیاں، پرائیویٹ سکولز اور بڑے بڑے شاپنگ مالز FWMC کے رڈار پر اب سب کو صفائی ستھرائی کی مد میں فیس ادا کرنا ہوگی۔ چناب کلب اور سرکل کلب سمیت دیگر کلبوں سے بھی فیس وصولی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ یوزر فیس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد سالڈ ویسٹ کمپنی فنڈز میں خود کفیل ہونا چاہتی ہے۔ فیس لگانے پر کبھی سیاسی پریشر آ جاتا ہے اور کبھی بیوروکریٹک رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کوڑا اٹھانے کی فیس ہی عائد نہیں ہو سکی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC کاشف عوان کا کہنا ہے کہ بولیوارڈ، RCG سمیت جتنے بھی مالز ہیں ان سے اور پنجاب کالجز سمیت تمام نجی اسکولوں اور کالجوں سے فیس وصول کی جائے گی۔ چناب کلب، سرکل کلب سمیت دیگر کلبوں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفنس ہاؤسنگ، کمال ایونیو، ایئر ایونیو، اسماعیل سٹی، اسماعیل ہاؤسنگ، FTA سٹی سمیت دیگر کالونیوں کو مکانوں کے حساب سے فیس عائد کی جائے گی۔ فرسٹ جو اپنا ہے فیز کے اندر کمرشل فیس اپنی جو ہماری یوزر چارجز ہیں وہ ہم ریسیو کریں گے وہاں سے۔ اس کے لیے ہماری پلاننگ مکمل ہے اور ابھی جو نیکسٹ BOD کی میٹنگ ہوگی بورڈ آف گورنرز کی، تو اس کے اندر اس معاملے کو رکھا جائے گا اور وہاں سے اپروول لینے کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم قابل عمل کریں۔ واضح رہے کہ کمپنی حکام کے مطابق آغاز میں فیس کم ہوگی، اس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا تاکہ کمپنی اخراجات پورے ہو سکیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے بیشتر پھاٹکوں پر نہ تو ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے اور نہ ہی وائرلیس کا اہتمام۔ ٹرین کی آمد کا پتہ گیٹ مین اندازے سے لگاتا ہے۔ شہر میں واقع نگہبان پورہ، تارک آباد اور نشاط آباد پھاٹک پر گیٹ مین کے پاس ٹرین کی آمد سے متعلق جاننے کے لیے ٹیلی فون اور وائرلیس نہ ہونے سے ناخوشگوار واقعات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ گیٹ مین کا کہنا ہے کہ دیا گیا ٹیلی فون خراب ہو چکا ہے، جبکہ دیگر کمیونیکیشن کے ذرائع بھی موجود نہیں ہیں۔ ٹرین کی آمد کا پتہ اندازے سے لگایا جاتا ہے۔ 15 منٹ پہ فاٹک بند رہتا ہے، اتنے سہولت بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ویسے فاٹک ویک کے اسی بند کرتے ہیں بھاجی، نہ سارے کو ٹیلی فون ہے۔ اس ٹائم ویکو جی ہر چیز مجبوری موبائل فون بند ہو جاتے ہیں بھاجان، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس جدید دور میں بھی فیصل آباد ریجن بھر کے پھاٹکوں پر گیٹ مین ٹرین کی آمد کا پتہ اندازے سے لگاتے ہیں، جس سے ناخوشگوار واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ محکمہ صحت فیصل آبادیوں کو سہولیات دینے میں ناکام، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اضافی 120 بیڈز کا 40 کروڑ کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 2017 میں DHQ اسپتال میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 120 بیڈ کے اضافے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس میں گائنی، امراض بچگان، میڈیسن اور نیورو سرجری کے 30 بیڈ شامل تھے۔ حکومت نے بجٹ 2021-22 میں فنڈ بھی مختص کر دیے، مگر تاحال محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے منصوبے کا PC1 ہی منظور نہ کیا جا سکا۔ MSDHQ اسپتال ڈاکٹر آصف امین سلیمی کا کہنا ہے کہ پہلے مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی، جبکہ بعد میں سیکٹری ہیلتھ تبدیل ہو گئے۔ جو سائٹ انہوں نے ایڈوائز کی اس پہ وہ آرکیٹیکچر جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کا اعتراض تھا، پھر ہم ان کو ساتھ لے کے گئے، وہاں ان سے ڈسکس کیا تو اس کی جو سائٹ ہے وہ فائنلائز ہوئی کہ یہ جو بھی ہمارا ایگزسٹنگ سیکیٹری وارڈ ہے اور اس کے اوپر گائنی وارڈ ہے اس کے پیرالل بنایا جائے گا۔ MS کا مزید کہنا تھا کہ PC1 منظور ہوتے ہی تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ منصوبے سے اسپتال میں 120 بیڈ کا اضافہ ہوگا۔ اس کا ہم نے ریوائز PC1 جمع کروایا تھا بنا کے، تو ابھی یہ جو نئے سیکٹری صاحب ہیں ان کے موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ جو ابھی چند دن نیا اس کا وہ پرنسپل سیکرٹری ہو گئے ہیں، وہاں پہ یہ دوبارہ ڈسکس ہوا تو کچھ امینڈمنٹس انہوں نے سجیسٹ کی تھیں، وہ ہم نے اس میں کر کے تو دوبارہ انہیں لیٹر بھیجا ہوا ہے، اس کا جواب کا انتظار ہے۔ منصوبے کے بروقت تکمیل نہ ہونے کے سبب تعمیراتی لاگت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مریضوں کو بھی سہولیات میسر نہیں آ رہی۔ 120 بیڈ پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام 2 سال میں مکمل ہوگا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عطار حسین، فیصل آباد۔ خواتین سے بدتمیزی، چھیڑ چھاڑ اور ہراسمنٹ کرنے والوں کے گرد شکنجہ تیار کر لیا گیا، پولیس نے کمر کس لی۔ فیصل آباد میں اینٹی ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل آپریشنل کر دیا گیا۔ خواتین سے بدتمیزی اور چھیڑ چھاڑ اب نہیں چلے گی، پولیس نے خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے گرد شکنجہ تیار کر لیا۔ فیصل آباد میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل آپریشن کر دیا گیا۔ خواتین کسی بھی مسئلے کی صورت میں 1213 پر کال کر کے شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ پولیس کیس کی عدالت میں سماعت کے دوران تک پراسیکیوشن کی معاونت کرے گا۔ ASP کوتوالی منزہ کرامت کا کہنا ہے اینٹی ہراسمنٹ سیل ضلع بھر میں خواتین کو مدد فراہم کرے گا۔ اب کسی بھی صورت خواتین کو ہراساں کرنے والے بچ نہیں پائیں گے۔ سیل کے قیام کا مقصد خواتین کو ہر سطح پر تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ جو سیل جو انسپیکشن کے لیے یہ سیل بنا ہے، یہ آئی صاحب کا ویژن ہے، کیونکہ بہت زیادہ وائلنس اور ہراسمنٹ کے کیسز میں بہت زیادہ انکریز ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ اسپیسیفک سیل بنایا ہے جو کہ پورے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں ہراسمنٹ کے وائلنس کی، اس کی مانیٹرنگ کرے گا۔
एंटी वीमन हरासमेंट सेल के हवाले से खवातीन का कहना था कि मर्द एहलकारों से बात करते हुए झिझक महसूस होती है। हरासमेंट सेल से खवातीन को अपने मसाइल बयान करने में आसानी होगी। हरासमेंट का शिकार होने वाली खातून का कहना था कि ASP और SHO ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ वर्क प्लेस पे जो है वो बदतमीजी की गई थी, लेकिन मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वालों ने सुनी है। मैं मुनज़्ज़ा करामत है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने मेरी बात पे एक्शन लेके फौरी, मैं 5 दिन से जलील हो रही थी। लेडीज़ ये परेशान होती थी कि ये मेल थाने में जाएंगी तो इनको मेल से वास्ता पड़ेगा, तो कुछ जो है ना इसी प्रॉब्लम की वजह से थाने नहीं जाती थी। तो ये बहुत अच्छा काम है जो CPO साहब ने, हमारी गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि ये वुमेन जेंडर प्रोटेक्शन जो है वुमेन हरासमेंट सेल कायम किया है, जहाँ पे लेडीज़ डील करती हैं। एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल के क़याम से फैसलाबाद की खवातीन खुद को महफूज तस्वर कर रही हैं। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। 10, 20 और 50 नहीं बल्कि 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो चुका है। जी हां, अगर नहीं सुना तो फिर सुन लें। जंग में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स को सब्सिडी के तहत गंदम फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। एक्स मिल रेट 1150 मार्केट में 1170 रुपए तक जा पहुंचा। मिल्स मालिकान कहते हैं कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। माह सितंबर का आगाज होने के बावजूद हुकूमत फ्लोर मिलों को सब्सिडी के तहत गंदम देने का फैसला ताहाल ना कर सकी। फ्लोर मिल्स मालिकान 2070 रुपए फी मन में गंदम खरीद कर महंगा आटा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 7 दिन के दौरान 20 किलो के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया। 2060 रुपए बाहर जिम्मेदार जो बात देगा उसी बात बिकेगी ना। आगे कम रेट थे, अब बढ़ गए हैं रेट, इसलिए 2000 ये 2100 भी चली जाएगी, 2200 भी हो जाएगी अगर हुकूमत ने कोटा ना दिया तो। फ्लोर मिल्स की जानिब से एक्स मिल रेट 1050 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया, जबकि शहर में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की पॉलिसी न होने की वजह से अभी तक मिलों को जो है वो गंदम नहीं दी जा रही, सप्लाई नहीं हो रही, और उसकी वजह से मार्केट में आटे का बहरान पैदा हो रहा है और ये रेट्स जो हैं अब तकरीबन 1200 रुपए तक मार्केट में पहुंच गए हैं और मजीद जो है बढ़ने जा रहे हैं। चक्की आटे की कीमत भी 60 रुपए फी किलो से जायद हो गई। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी के तहत सस्ता आटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। गरीब के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन होने लगा है और तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बढ़ती कीमतों पर हुकूमती खामोशी से गरीब आवाम का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। सीमेंट, सरिये और दीगर सामान की बढ़ती कीमतों से तामीराती सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। हुकूमत के सब्सिडी के दावों की नफी भी सामने आ रही है। मतवस्त तबके से तल्लक रखने वाले आम शहरी का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी छत बनाना होता है, मगर हुकूमत वक्त हाउसिंग स्कीम के जरिए इस ख्वाब को पूरा करने की बजाय बिल्डिंग मटीरियल की बढ़ती कीमतों पर खामोशी का रोजा रखे हुए हैं और यूं ही ये ख्वाब भी चुकनाचूर होता जा रहा है। ਇੱਟ ਸੀ 7000 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ 9500 ਨੂੰ, 10000 ਨੂੰ ਇੱਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ। ਅਵਲ ਤੇ 12000 ਚ ਲੱਭਦੀ, ਅਵਲ 12000 ਚ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ। 10000 ਰੁਪਏ ਚ ਬਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਰਸ਼ੀ ਅਵਲ, ਉਹ ਵੀ 10000 ਰੁਪਏ ਚ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਵਲ नहीं लगवा रहे, ਹੁਣ बारशी लगवा रहे हैं। 510 रुपए में फरोख्त होने वाले सीमेंट की बोरी 670 रुपए की हो चुकी है, जबकि 1,12,000 रुपए टन बिकने वाला सरिया 1,70,000 में फरोख्त हो रहा है। 3 महीने पहले सरिये का रेट 150 रुपये था, 130 रुपये भी है, अब जो है 170 से 180 रुपये। ठीक है, सीमेंट की बोरी जो 600 रुपये की थी 670 की हो गई है। बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े ताजर हुकूमत से अपील करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जरूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की महदूद दरामद करे ताकि मुसाफकत बढ़ सके। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। तामीराती मटीरियल में इजाफे से जहां घर बनाना मुश्किल हुआ, वहीं घर चलाना भी इम्तिहान बन चुका है। सरिया, सीमेंट और दीगर तामीराती सामान की कीमतें बेकाबू होने से जहां तामीराती शोबा मुतासिर हो रहा है, वहीं मजदूर को घर चलाने में भी दुश्वारी का सामना है। तामीरात से मुंसलिक मजदूर शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि महंगाई के बायस काम ना होने के बराबर है। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल नजर आता है। इधर रोजगार नहीं है, महीना हो गया वेले बैठे हुए हैं। खान साहब कह रहे हैं जी मैंने सहूलतें दे दी हैं, मैंने लंगर खाना खोल दिया है,
चलो वो हम मानते हैं, वो लंगर खाना हमारे लिए है, जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारी वालदा साहब है, हम उन्हें भी इधर लंगर खाने में लेकर आए। मजदूरों का कहना है कि काम ना होने से घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। महंगाई बढ़ गई है, काम इधर नहीं है मजदूरों के लिए, ये वैसे ही बैठे हैं बेले। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से न सिर्फ घर बनाने वाले परेशान हैं, बल्कि मजदूर तबका भी अजियत में मुब्तला दिखाई देता है। कैमरामैन जुनेद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। डिवीजन में 174 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया है और डिवीजन में 174 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 102, जंग में 48 और टोबा में 16, जबकि चिन्योट में 8 अफराद में तस्दीक हुई है। बायलॉज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनियों के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। कॉलोनियों को सर्बमोहर करने से रिहायशियों को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी होगी। बायलॉज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनियों के रिहायशियों को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया। नए कवानीन से सरबमोहर होने वाली कॉलोनियों में रिहायशियों के मसाइल हल होंगे। गैर कानूनी कॉलोनियों को सरबमोहर करने से मुतासरीन अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, न ही यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पूरी कॉलोनी पर हुक्म इम्तनाई जारी हो जाता है। मेरे माँ बाप की जमा पूंजी जितनी थी ना, वो हम लोग मेरे बाप ने ली थी उधर जगह। ना तो हमें प्लाट मिल रहा है, ना हमें वो जो रकम है वो मिल रही है, ना हमें वो जो प्लाट की सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। हमारी टोटल जो ज़िंदगी की जो रकम थी ना, वो टोटल वहाँ पे फंस चुकी है। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कॉलोनी में प्लाट लिया हुआ था। 3 साल वो प्लाट, 3 साल के बाद वो कानूनी में प्लाट अब FDO वालों ने सील कर दिया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी जमा पूंजी जो सारी वो इसमें ज़ाया हो चुकी है। 2-3 साल पहले हमने प्लाट लिया था, तो अब हमें पता चला है वो कॉलोनी को सील कर दिया गया है, FDO ने उसको सील कर दिया है। तो हमने आजकल के हालात के मुताबिक, आपको ही पता है कितनी मुश्किलात हैं इस दौर में, हमने जो जमा पूंजी थी वो हमारी अब ज़ाया हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ नोटिस ले। दूसरी जानिब चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र का कहना है कि पंजाब भर में नया कानून बनाया जा रहा है, जिसकी रूह से इन्वेस्टमेंट करने वालों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पंजाब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजमत की सरबराही में एक कमीशन बन चुका है। ये सारे इस किस्म के मसाइल वहाँ पर डिस्कस हुए हैं और एक मैं कह रहा हूँ कि वो एक इज्तिमाई पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे ये जो मसला फैसलाबाद के शहरियों का ये हल हो जाए। मुतासरीन की जानिब से नए कवानीन को खुश आइंद करार दिया जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। प्रॉपर्टी मालिकान हो जाएं तैयार। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इन एक्शन शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़ प्रॉपर्टी मालिकान से टैक्स वसूली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी मालिकान पर नया टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। मोटरवेज और शाहराहों पर वाक़या अमारात के मालिकान से भी टैक्स वसूल किया जाएगा, जिसे हाईवे टैक्स का नाम दिया गया है। फैसलाबाद की हदूद में 14,000 इमारतों की निशानदही की गई है। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद कहते हैं, डिवीजन की हदूद में शहरी हदूद से बाहर 14,000 जायदादों की निशानदही की गई और इनकी टैक्स असेसमेंट मुकम्मल कर ली गई है। रिकवरी का सालाना तखमीना 10 करोड़ रुपए लगाया गया है। जो हाईवेज हैं, मोटरवेज की साइडों पे इसके ऊपर वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएबल हो गई हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। तो उसका हमने पिछले साल सर्वे किया है। कुछ 724 किलोमीटर की लंबाई है पूरे डिवीजन के अंदर और कोई हमें 10 करोड़ की इनकम मुतवक्को है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक शाहराहों और मोटरवेज की तामीर पर अरबों रुपए लागत आती है और इससे प्रॉपर्टीज की कीमत भी कई गुना बढ़ जाती है। लिहाजा हुकूमती हिदायत पर शाहराहों पर वाक़े तमाम प्रॉपर्टीज को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। माली साल के दूसरे महीने में भी बरामदात खसारे में रहीं। अगस्त में बरामदात जुलाई से भी कम। मुशीर कांग्रेस ने मलबा, फ्री ट्रेड्स और ज्यादा बारिशों पर डाल दिया।
माली साल के दूसरे महीने में बरामदात में खसारा सामने आ गया। माली साल 2021-22 का पहला महीना जुलाई और इसके बाद अगस्त दोनों खसारे में रहे। मशीर कॉमर्स रजाक दाऊद ने ट्वीट करते हुए मलबा फ्रेट रेट्स और ज्यादा बारिशों पर डाल दिया। अगस्त में बरामदात $2.25 तक रही, जबकि जुलाई में बरामदात $2.3 अरब से ज्यादा थी। बरामदात में मुल्क को $143 मिलियन के खसारे का सामना करना पड़ा। हम तो पिछले कई माह से इसके ऊपर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि खुदारा हमारी बात सुने, जो हमारे प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें, जिसमें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम था यान का। उसी वजह से पिछले साल जून से जो अगस्त की हुई है वो तकरीबन 12% कम एक्सपोर्ट हुई है। हुकूमत की जानिब से $33 अरब की बरामदात के लिए $2.4 अरब माहाना टारगेट रखा गया। मशीर कॉमर्स की जानिब से एक्सपोर्टर्स से एक्सपोर्ट बढ़ाने का मुतालबा किया गया। चेयरमैन PHM मियां फरूख इकबाल कहते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएं? यार्न की शॉर्टेज और कीमतों के साथ फ्रेट रेट्स बेकाबू हैं। मौजूदा सूरत हाल देखते हुए आने वाले महीनों में मजीद खसारे का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई से अगस्त का कंपैरिजन है, जुलाई में 2.23 थी और इस दफ़ा 2.25 हुई है और यकीनन यही आगे ट्रेंड चलेगा, बल्कि ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा जब तक ये यान की अवेलेबिलिटी को यकीनी नहीं बनाते। हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दाम ना किए तो बरामदात खसारे में ही रहेंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सर्विस की फराहमी। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह मियां शहजाद की जानिब से अमन कमेटी और जिले इंतजामिया के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। टोबा टेक सिंह में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज, MPA सईद अहमद सईदी ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद, DPO राना उमर फारूक, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSPs, अमन कमेटी के मेंबरान समेत मुतअद्दिद शख्सियात भी मौजूद थी। शुरका का कहना था कि मुहर्रम में तमाम अफसरान समेत मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया है, जिसकी वजह से जिला भर में अमन व अमान की फजा बरकरार रही। अल्लाह के फजल से जिला में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अल्लाह की ज़ात पर बहुत शुक्राना पेश करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह से साबका रवायात की तरह ये मुहर्रम हराम भी बहुत पुरअमन तरीके से और आप सब लोगों के ताउन से बहुत अच्छे अंदाज से गुजरा। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इनके MC का अमला है, सिविल डिफेंस का अमला है, इनकी पूरी टीम को राजी तहसील पेश करता हूँ। जिस अंदाज से, जिस खूबसूरत तरीके से हमारे जो मुहर्रम के अय्याम गुजरे हैं, ये वाकई काबिल तहसीन दिन थे कि जिस अंदाज से इन्होंने ये पूरे सिक्योरिटी इंतजामात बड़े अच्छे तरीके से किए। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन काम करने पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद की जानिब से तमाम अफसरान को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। जंग में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद में किरदार अदा करने वाले अफराद के एजाज में पुलिस की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। जंग पुलिस ने मुहर्रमुल हराम में मिसाली इंतजामात करने और इसमें शरीक तमाम अफराद को शुक्रिया अदा करने के लिए नई रीत शुरू की। जंग पैलेस में शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, जिसमें DC फयाज मोहल, DPO सरफराज विर्क, MPA माविया आजम, महार असलम भरवाना, मौलाना अहमद लधियानवी, AC एडमन सजाद बाबर, DO रेस्क्यू अली हसनैन, अंजुमन ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए DPO का कहना था कि अहलकारों ने 18-18 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देकर इस इवेंट को पुरअमन बनाया। ये कोई एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब तमाम अदारों की, तमाम लोगों की और मजमूई तौर पर आवाम की जिम्मेदारी है कि हम इस अमन को बरकरार रखें। DC फयाज मोहल का कहना था, जंग ने अपने क्राइसिस का वक्त देख लिया है, अब तरक्की देखना बाकी है। जंग पुरअमन रहेगा तो तरक्की होती रहेगी। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अमन जो बेसिकली दीन का एक सतून है, सलाम जो सलामती का मज़हब है, तो आप लोगों ने जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट है उसको तर्क कर दिया है और अब तरक्की आपका मुकद्दर है। जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया
वो यकीनन काबिल तहसीन है। MPA मावी आजम का कहना था झंग को हसास जिला कहना बंद कर दें क्योंकि झंग के शहरी अब अमन को वोट देते हैं। MP असलम भरवाना का कहना था माजी में सियासत के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल हुआ जिससे शहर का नुकसान हुआ, मगर अच्छे अफसरान की वजह से शहर अब इस बहरान से निकल आया है जो खुशाइंद है। हम उस तमाम पहलुओं को जिनको यकीनी बनाने के बाद हमने इस मुहर्रम को एक मिसाली और बेहतरीन मुहर्रम बनाया है, आप उसको लिख दें और उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुहरें और दस्तखत करवा लें और वो एक खूबसूरत नक्शा सामने आ जाना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम में इस खूबसूरत मॉडल को फॉलो किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में किसी भी दौर के इन दफातर के अफसरान को और जिम्मेदारान को अपना फासला तय करने में आसानी हो। सरकारी अफसरान तो आते जाते रहते हैं, जिस तरह हम नुमाइंदे हैं हम भी आते जाते रहते हैं। हमेशा हुकूमत अल्लाह ताला की जात की है, लेकिन मेरा ख्याल है जो भी आएगा अगर ये माहौल बरकरार रहा और अगर इसको फॉलो किया जाता रहा तो इंशाअल्लाह हालात फिर भी ऐसे ही रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पुलिस एहलकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों को यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन अजीम लोधी के साथ तैयब सैफ, झंग। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट एंड मैनेजमेंट कंपनी में सूबाई वजीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां असलम इकबाल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुलाकात भी की और सरमायाकारों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी भी लगाई। यहाँ पर एक ओपन कोर्ट किया, खुली कचहरी लगाई है जिसमें मैं भी हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर। पिबट की जो हमारी CEO हैं डॉक्टर इरफा इकबाल साहबा वो भी आई हैं, बाकी भी जो स्टाफ है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पे कॉमर्स के वो भी मौजूद हैं। लोगों के कुछ जो कंसर्न थे या उनकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल यहाँ पर जो थोड़ी सी उसमें कमी बेशी है उसको हमने फास्ट ट्रैक पे डाला ताकि वो उन चीज़ों को ठीक किया जा सके, ताकि जो सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। कहते हैं सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करनी है। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में होने वाली सरमायाकारी और नए प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। मियां असलम इकबाल का सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एक हफ्ते में चेयरमैन फेडमे का चुनाव कर लिया जाएगा। बोर्ड तकरीबन कंप्लीट हो गया, बोर्ड के मेंबर्स हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर चेयरमैन की जो नॉमिनेशन है वो कर दी जाएगी। इस मौका पर प्लाट कैंसिलेशन समेत नई सरमायाकारी पर गुफ्तगू की, जबकि बोर्ड मेंबरान इख्तिशाम जावेद, रिजवान अशरम, खुर्रम मुख्तार, मोहम्मद अहमद, जियाल अमदार समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी शरीक थीं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल मॉडल कॉलेज का दौरा प्रिंसिपल DPS मोहम्मद शाहिद महमूद और प्रिंसिपल DMC एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर सरवर से मुलाकात हुई। शजरकारी मुहिम के हवाले से डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल मॉडल कॉलेज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान ने खसूसी शिरकत की और प्रिंसिपल DPS मोहम्मद शाहिद महमूद और प्रिंसिपल DMC एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर सरवर के हमरा स्कूल अहाते में पौधे लगाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार साहब के विजन के मुताबिक हम जैसे ही आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हुए हैं तो ये फैसला किया गया कि हमने 75वें साल को एज ग्रीन पाकिस्तान ईयर मनाना है। उसी सिलसिले में ये ट्री सुनामी का सारा कॉन्सेप्ट है। फिर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करने की कोशिश की कि हमने 1 मिनट में 1 लाख पौधे ज़िला फैसलाबाद में लगाए। कमिश्नर साकिब मन्नान ने तालीमी अदारों के सरबराहान को हर बशर 2 शजर के तहत असाजा से 2-2 पौधे लगवाने की हिदायत की। कमिश्नर साकिब मन्नान का कहना था कि तमाम महकमे शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हर फर्द अपने हिस्से का पौधा लगाए तो जल्द ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सकता है। ये तकरीबात मुख्तलिफ इदारों में हो रही हैं, उन्हीं इदारों में हमारे तालीमी इदारे भी शामिल हैं और फिर आज DPS की तकरीब आपके सामने। मकसद यही है कि हम बच्चों में भी इस चीज़ को लेके जाएं और उनको हम बताएं कि जी आपकी कौमी ज़िम्मेदारी है और हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। अगर हम तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे तो ये ट्री सुनामी का टारगेट बड़े आसानी से हासिल किया जा सकता है। कमिश्नर साकिब मन्नान ने दोनों इदारों के प्रिंसिपल से मुलाकात में तालीमी सूरत हाल का भी जायजा लिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।